morning, students. I'm your EVS teacher, Sayyed Minas, and today we are going to start our EVS 1 lesson number 7. Let us solve our own problems. So, in this lesson, we'll see which are the problems in our daily life we are facing in the social life and how we can try to solve our own problems. So let's start the lesson. See here in the picture, some pictures are given over here. What problems can you identify from the following pictures? By seeing the picture, which problems we और you can identify, आपको कौन सी problems यहाँ पर दिखाई दे रही है and how we can solve this problem. My area gets water only twice a week. So here in the first picture, one girl is saying कि in her area twice a week the water comes. Means उनके एरिया में वीक में 3 टाइम ही वाटर आता है टैप से. In the second picture, the garbage has piled up. I have to walk to school with my nose covered. So that boy, as you can see in the picture, there is a garbage on the road ना. Piled up means garbage बहुत ज़्यादा हो गया है and boy को क्या प्रॉब्लम होती है, स्कूल जाते वक्त उसे नोज़ अपनी कवर करके वहाँ से जाना होता है because of bad smell. In the next picture, I feel like riding my bicycle to school every day, but there is no bicycle track. So that girl is going to the school with a bicycle, but which problem she is facing? She is suffering that कि बाईसाइकिल के लिए सेपरेट ट्रैक नहीं है. देयर इज़ ए मेन रोड जहाँ से 4 व्हीलर्स जाती है और गर्ल्स को कहाँ से जाना होता है, रोड के साइड से जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ से उसे बाईसाइकिल ड्राइव करनी पड़ती है. नेक्स्ट वन, माई फादर हैज़ टू विजिट द तालुका प्लेस every day for some dispute over the land. तो the boy is talking about his father के फादर को उनके जो भी लैंड के जो डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम्स है, वो उसको डिस्कस करने के लिए कहाँ जाना होता है, तालुका में, तालुका प्लेस पर जाना होता है. तो हियर 4 pictures are given and some problems are also given. So we can think by our own कि how in if you are in this situation how you can solve these problems. अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप खुद एज आवर लेसन नेम कि लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर सी, तो प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें हमारी सिविक लाइफ में, सोशल लाइफ में आती है और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं और पीपल्स कैसे उनकी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. Issues in civic life. We encounter many problems in civic life. These problems caused us inconvenience. Sometime our life is thrown into disorder. If we turn a blind eye towards problems, they become worse. So it is best to solve them in time. The problems faced by people in cities and village can be called problems or issues in civic life. You have a question, which what is called the issues or in civic life, so we'll discuss it afterward. It is important to able to identify such issues. One person alone cannot solve such problems. They can be solved through everyone's effort and cooperation. So here underline the word first, encounter. देखो, we encounter many problems in our civic life means हम हमारी civic life में बहुत सारी problems को face करते हैं. encounter means face करना, हम हमारी life में बहुत सारी problem face करते हैं. peoples अपनी civic life में problem face करते हैं and बाय सीइंग द प्रॉब्लम्स अपनी आइज़ को ब्लाइंड कर लेना. हम प्रॉब्लम्स देखकर भी अगर अपनी आइज़ क्लोज कर दे रहे हैं, ब्लाइंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सिचुएशंस डे बाय डे और इंक्रीज़ होती जाएगी. अगर ये बॉय
एवरी डे वहाँ से जा रहा है एंड द गार्बेज इज़ पाइल्ड अप, और वो नोज़ कवर करके उसे जाना है, तो वो क्या होगा, स्मेल बढ़ती जाएगी और पीपल्स और भी डिसीज़ फेस कर सकते हैं, सफ़र करेंगे डिसीज़ से। तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम अपने आइज़ को ब्लाइंड करके फेस करते जा रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी और हमारी कंडीशन वर्स होती जाएगी। तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं सिटीज़ और विलेज के पीपल्स की लाइफ में, उसे ही क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ इन द सिविक लाइफ। सो इट इज़ नॉट आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम अकेले ही ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। वी नीड द हेल्प ऑफ अदर पीपल्स ऑल्सो इन सोसाइटी और इन आवर सोशल लाइफ, इन सिविक लाइफ। इफ़ ऑल पीपल्स विल कोऑपरेट टू ईच अदर, देन वी कैन सॉल्व दिस problems. Some problems we can solve alone, but not all the problems we can solve alone. हम कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स बड़ी है तो अकेले सॉल्व करना, तो हमें सबको मिलकर ये प्रॉब्लम्स एक दूसरे की हेल्प से, कोऑपरेशन से सॉल्व करनी है। सॉल्विंग डिस्प्यूट, कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर वेरियस इशूज़ ऑन आवर टाउन एंड विलेज कैन ऑल्सो बी प्रॉब्लम. The well-being of a village is affected by constant dispute. It leads to loss of unity and obstruct the progress of the village. If the dispute are not serious, they can be solved locally or speaking to the parties involved. However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to the appropriate bodies or to the court. तो क्या होता है, विलेजेस में भी, सिटीज़ में भी, हमें हमारे एरिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एंड उस डिस्प्यूट से क्या होता है, जो विलेज का डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आते हैं, वो ऑब्स्ट्रैक्ट बन जाता है विलेज के प्रोग्रेस के लिए, सिटी के प्रोग्रेस के लिए। तो इफ़ द इशू इज़ स्मॉल एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर, तो लोकली वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर हमारे विलेज में कोई प्रॉब्लम है तो उसे विलेज के सरपंच है, दूसरे रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है, वो सब मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी पीपल्स में, दो पार्टीज़ में, दो हाउसेस में डिस्प्यूट है, फाइटिंग हुआ है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो हम बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ़ द इशू इज़ वेरी बिग एंड सीरियस, अगर इशू बहुत सीरियस है, डिस्प्यूट सीरियस है, तो उसके लिए हम अप्रोप्रिएट प्लेस पर जाकर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास कोर्ट है। तो ऐसे प्लेसेस पर हमारे बिग प्रॉब्लम्स जो वो सॉल्व हो जाते हैं। हियर इज द एग्जाम्पल गिवन अबाउट गांधी जी। सिंस 2007 द महात्मा गांधी dispute free village mission is being implemented in our state. The aim of this scheme is that village should be able to solve their own dispute through peaceful discussion. This method of solving dispute increase harmony in the village. Village which has solved their dispute by using this method also get peace award. In cities, mohalla committee help to solve the disputes. So 2007 से एक कौन सा मिशन स्टार्ट हुआ है, महात्मा गांधी जी का डिस्प्यूट फ्री विलेज। तो इस मिशन के अकॉर्डिंग जो मोहल्ला कमेटी है, जो बॉडीज़ होती है, वहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्प्यूट को कामली बात करके, एक दूसरे से डिस्कस करके वो ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इसके लिए उन्हें डिस्प्यूट फ्री विलेज का अवार्ड भी दिया जाता है। तो इन दिस वे क्या होता है, विलेज का प्रोग्रेस भी हो रहा है, और इस मिशन के थ्रू उन्हें पीपल्स को अप्रिशिएट भी किया जाता है अवार्ड के थ्रू। तो ये मिशन 2070 से गांधी जी, इन द मेमोरी ऑफ गांधी जी में स्टार्ट किया है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? हिवारे बाजार। So here there is a problem and how the people solve their problems. We will see there. कैसे यहाँ पर in this lesson we will see the examples of real examples of the villages, कि कैसे डिफरेंट विलेजेस में पीपल्स ने अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व की है और हम उनसे कैसे सीख सकते हैं. सो दैट इज़ गिवन इन द लेसन.
In the village of Hiware Bazar in Ahmednagar district, water shortage was a very big problem. This problem was solved with the help of and appreciation of the villagers. The problems of animals feed was also solved. Now Hiware Bazar has lush green surrounding. Many villages face water shortage. Find the reasons for this and suggest solution. देखो हिवारे बाज़ार इज़ अ रियल प्लेस इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रॉप भी ग्रो नहीं हो रही थी एंड एनिमल्स को भी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं था. बट विलेजर्स ने, पीपल्स ने, वहाँ के विलेज के लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. एंड नाउ अ डेज वी कैन सी के द हिवारे बाज़ार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग. वहाँ पर बहुत लश ग्रीन, फुल ऑफ ग्रीनरी सराउंडिंग हमें आज दिखाई देती है. सो ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जो वाटर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं. तो वी शुड थिंक अबाउट द सॉल्यूशन कि हम वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से आइडिया और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं बाय आवर ओन. द अनदर प्रॉब्लम इज़ क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान. तो अनदर एग्जाम्पल इज़ गिवन के विलेज को क्लीन कैसे रखा गया. द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल ऑफ खुड़वाड़ी विलेज इन उस्मानाबाद. तो ये कहाँ की एग्जाम्पल है, खुड़वाड़ी विलेज इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट. क्लीन देयर विलेज थ्रू श्रमदान और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर. दे डिसाइडेड voluntary contribution of labor. So what happened in the Khudwadi district, they did the work through the श्रमदान. विलेज को क्लीन करने के लिए उन्होंने कौन सा स्कीम स्टार्ट किया, श्रमदान. तो व्हाट इज श्रमदान, विल सी हियर. वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मीन्स विदाउट पेमेंट. विलेज के जितने पीपल्स थे वो विदाउट पेमेंट उन्होंने श्रमदान के थ्रू विलेज को क्लीन करना स्टार्ट किया. They decided that everyone should help in cleaning the village. First, the waste water was dealt with. The garbage was used to make manure using vermiculture. A toilet was built in each house. So, to keep the houses clean, to keep the village clean, what did they first do? They first make the toilet in each house. तो उन्होंने सबसे पहले देखो, टॉयलेट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन द विलेज ना. तो टॉयलेट नहीं होता है जिससे डर्ट होता है और विलेज डर्टी होते हैं. इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हर हाउस में टॉयलेट हो, ये स्कीम स्टार्ट की. देन द वेस्ट वाटर, डर्टी वाटर का यूज़ किया. देन गार्बेज वॉज यूज टू मेक द मैन्योर यूजिंग वर्मिकल्चर. तो गार्बेज को किसके लिए यूज़ किया, वर्मिकल्चर के लिए. जो नेचुरल मैन्योर होता है ना, दैट इज़ वर्मिकल्चर. द प्रोडक्शन ऑफ अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म इज़ यूजिंग इन फार्मिंग ना, अर्थवॉर्म का यूज़ होता है फार्मिंग में. तो वर्मिकल्चर के थ्रू नेचुरल मैन्योर बनाना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ गार्बेज एंड डर्टी वाटर. एंड द नेक्स्ट थिंग दे डिड, दे मेड द टॉयलेट्स इन एवरी हाउस. सन Gadji Baba used kirtans to stress the importance of keeping the village clean. We have seen about the Sant in EVS 4th standard ना. हमने 4th स्टैंडर्ड में सारे संत के बारे में पढ़ा हुआ है कि उन्होंने कौन कौन से वर्क किए. क्लीनलीनेस पर उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया, इम्पोर्टेंस बताया. He told the people that we cannot make progress without cleanliness, education and self-reliance. What is important for the progress of people? उन्होंने किस 3 थिंग्स को इम्पोर्टेंस दी है पीपल के प्रोग्रेस के लिए, क्लीनलीनेस, एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी. Self-reliance, cleanliness and education are the 3 important things on which Sant Gadji Baba stressed about for the progress of people. He showed people how to clean the village through his own action. उन्होंने पीपल्स को खुद अपने एक्शन के थ्रू क्लीनलीनेस सिखाई, खुद क्लीन किया एंड पीपल्स को ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड. ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड विद हिज एक्शन. राष्ट्रसंत तुकदोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस थ्रू हिज ग्रम गीता. तो ग्रम गीता के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, प्ले के थ्रू, एक्शन के थ्रू
ऐसे संत ने लोगों को क्लीनलीनेस के रिगार्डिंग अवेयर किया। तो तुगदोजी महाराज ने भी ग्रम गीता में पीपल्स को क्या सिखाया है अबाउट क्लीनलीनेस। हियर द पिक्चर्स आर गिवन ऑफ बोथ द सन। Newspaper carries several articles about the Shramdan. Collect this article, discuss at the things that can be achieved through it. तो श्रमदान के थ्रू हमने यहाँ पर श्रमदान से रिलेटेड एग्जाम्पल देखा, श्रमदान में क्या क्या उन्होंने किया। फॉर अबाउट द मोर डिटेल यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्टिकल्स और द न्यूज़पेपर। सो हियर आर द सम क्वेश्चंस फॉर यू। Do you think that there should be a group of peacekeepers in your school? आपको क्या लगता है स्कूल में भी पीस कीपर मीन्स फाइटिंग और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ग्रुप होने चाहिए, पीपल्स सेलेक्ट होने चाहिए जो स्टूडेंट्स में फाइटिंग को रोक सके, क्लीनलीनेस के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्ट कर सके, जैसे मॉनिटर्स होते हैं क्लास में, लाइक दैट। सेकेंड, व्हाट क्राइटेरिया विल यू यूज़ टू सेलेक्ट दीज पीस कीपर्स? तो ऐसे पर्सन पीस कीपर्स को जो शांति बनाए रखे उनको सेलेक्ट करने के लिए आप क्या क्राइटेरिया रखोगे, किन को सिलेक्ट करोगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनमें? विच रूल्स विल यू इंक्लूड इन द रूल बुक फॉर दिस पीस कीपर्स? तो पीस कीपर्स करने के लिए, पीस मेंटेन रखने के लिए आप कौन कौन से रूल्स बनाओगे? What method should peacekeeper use to solve your dispute? आपके प्रॉब्लम्स को, फाइटिंग को सॉल्व करने के लिए उनके पास कौन से मेथड होने चाहिए या होंगे? How did you understand that dispute can be solved peacefully? आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्प्यूट पीसफुली सॉल्व हो सकते हैं या हुए हैं, और कैसे हो सकते हैं पीसकीपर्स के थ्रू? You have to think about all these points. For a society to be peaceful, the basic need for all of its sections need to be met. Each person must get the necessary security. The exploitation in society must stop. तो सोसाइटी में पीसफुल होने के लिए एक दूसरे के राइट्स को हमें देना है, एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे की नीड्स को कंप्लीट करना है। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट इन सोसाइटी मीन्स किसी पुअर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है हमें। वी शुड हेल्प देम किसी भी तरीके से बाय एनी एक्शन। वी शुड नॉट गिव देम हार्म, एनी काइंड ऑफ अ हार्म। तो पीपल्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए विदाउट एनी रीज़न। वी शुड नॉट हरेस द पीपल, वी शुड नॉट beat the people, we should not do any action which can make the trouble for the peoples in the society. In society must be stopped, inequality must decrease, everyone must have the right to participate in the public life. By learning the importance of peace and by using peaceful method, we can create a peaceful environment in our family, school and community. How we can make our environment peaceful, our life peaceful and community peaceful by giving everyone's right. हम हर पर्सन को उसके राइट देंगे, तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी फैमिली, हमारी स्कूल पीसफुल होगी। एवरी पर्सन हैव द राइट, हर पर्सन को हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में राइट है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने का। सो इन पब्लिक लाइफ बाय लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, अगर हमें पीस की इम्पोर्टेंस पता होगी, एंड बाय यूजिंग दिस पीसफुल मेथड वी कैन क्रिएट पीसफुल इन्वायरमेंट। If we are not exploiting people, we are not behaving badly, we are try to cooperate, we try to solve our own problems and other people's problem, and we will work together, तो क्या होगा, हमारा environment peaceful होगा, और peaceful environment होगा तो life peaceful होगी, family peaceful, school and community, same behavior we can apply at every places. In order for the peace to spread worldwide, here we have talk about our community and life and school, but worldwide peace maintain करने के लिए क्या गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कंट्री क्या कर रही है? इन ऑर्डर टू for peace to spread worldwide,
and for nation to be able to strive for the development of their people. 21 September has been designated by the UN as इंटरनेशनल पीस डे. तो सब नेशंस ने मिलकर वर्ल्ड वाइड पीस डे स्टार्ट किया है एंड विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर को. क्या जैसे हम अदर थिंग्स सेलिब्रेट करते हैं ना, वुमेंस डे, फादर्स डे, मदर डे, तो ऐसे ही इंटरनेशनल पीस डे है विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर. On this day in New York, where the United Nations have their headquarters, a bell is rang 10 o'clock in the morning. This is followed by a few minutes of silence. This bell has been made from coins given by peoples from around 60 nations. तो क्लॉक बनाया है उन्होंने, बेल बनाया है उन्होंने 60 नेशंस के कॉइन को कलेक्ट करके, जो 10 o'clock को वो रैंक करते हैं एंड फॉर अ फ्यू मिनट्स दे आर कीपिंग साइलेंस. तो वेयर इट इज़ सेलिब्रेटिंग, इट्स सेलिब्रेटिंग इन द न्यूयॉर्क का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर वो पीसफुल डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पीस डे. इफ़ यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस, हियर इज़ द वेबसाइट गिवन. आप इंटरनेशनल पीस डे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. हियर द लेसन इज़ एंड विच एवर द वर्ड्स आई हैव अंडरलाइन, यू ऑल्सो अंडरलाइन, राइट डाउन एंड लर्न द स्पेलिंग. आई विल सेंड यू द नोट्स. लर्न एंड राइट properly in your book and so write all this answer in your workbook also.